Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you, students? I hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. Students, today we are going to do more practice of SMR, but I want to ask something about our last class. In the last class, we have learned the use of SMR, non-action sentences, and I have given you exercise A of page number 7. मैंने आपको पेज नंबर 7 की एक्सरसाइज नंबर ए एक्सटेंडेड प्रैक्टिस दिया था. इज इट नाउ जस्ट टैली विद मी. इफ यू हैव एनी मिस्टेक यू विल मेक इट्स करेक्शन. आई एम लुबना. आई एम 8 years old. My mother is a teacher and my father is a doctor. We are a family of 5. My brother's name is Ali. He is very naughty. My sister's name is Jamila. She is fond of playing football. We are a happy family. Safiya and Qaisar are our neighbors. They are very helpful. Here you can see that am comes with I, and every singular noun comes with singular noun, and plural noun, plural pronoun or noun we have are. Okay class, let's come to the page number 8. Here we have exercise of this, that, these, those. Before we do it, we have to learn, we have to understand what are they. Is it? Look at the board, all of you. Students, look at the board, and here I have made a chart to describe you this, these, that, those. First of all, you should know the concept of this, these, that, those. इसका concept देख लीजिए. This और these indicates the nearness. Nearness कहते हैं करीब की कोई भी चीज़, करीब की, the nearness of thing or things. This shows singular. These shows plural. What about that and those? Students, that, those indicates the distance of thing or things. यानी ये फासला बताता है. That और those फासला बताता है. That is used in singular or those is used in plural. Is it clear? In English grammar, they are called demonstrative pronouns. What are they called? They are called demonstrative pronoun. Demonstrative का मतलब है, demonstrate का मतलब है कोई चीज़ show करना, दिखाना, किसी तरह indicate करना. Is it? Now let's come to the another chart. Here I have made a chart for you, and I have titled them singular, plural. Singular plural हमने बहुत अच्छा किया हुआ है prep में. Singular means वाहिद, plural means jama. So here I have mentioned the singular word is. Singular के कॉलम में मैंने is लिखा है और plural के कॉलम में मैंने are लिखा है. ठीक है, यानी is shows singular and are shows plural. Okay, let's see the example. This is a flower. अब देखिए मैंने यहाँ फिंगर के उससे आपको मेंशन किया है कि फ्लावर को कि वो क्लोज है, वो नियर है. इज इट? एंड व्हाट अबाउट द नेक्स्ट एग्जांपल? दैट. देखिए फिंगर से मैंने आपको डॉट से मैंने शो किया. हियर इज द डिस्टेंस बिटवीन समथिंग, कि किसी चीज़ के दरमियान फासला है. सो फार, दूर है वो. सो दैट इज अ फ्लावर. जैसे मैंने आपको कहा कि सिंगुलर एक के लिए इज आता है. सो वॉट एवर वहाँ पे दिस हो या दैट हो, वी मस्ट राइट इज विद दिस और वी मस्ट राइट इज विद दैट. दैट शोज द फार थिंग, द डिस्टेंस, थिंग्स ऑफ डिस्टेंस, और नियर मतलब करीब. लेट्स कम टू द प्लूरल. लेट्स सी. मैंने क्या किया, दिस को सिंगुलर था, I have made it these. These मतलब एक से ज़्यादा. ठीक है ये भी नियर, करीब. These are flowers, करीब के flowers. Those are flowers,
दूर के flowers. Students, here we have completed the chart. Now let's have the practice. More practice. I have shown some pens here and just give me the answer. Okay. थ्रू फिंगर पॉइंट आप उससे मुझे रिप्लाई कर सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या है, क्योंकि मैंने आई हैव शोन यू थ्रू फिंगर के कौन सी चीज़ करीब है, कौन सी चीज़ दूर है. लेट्स हैव द प्रैक्टिस. मोर प्रैक्टिस वी हैव. नाउ लेट्स सी, इज इट नियर और फार? क्या लग रहा है? यस, दिस इज नियर. सो which demonstrative pronoun will come here? This. And which verb will come here? This is. और है क्या ये? फिर हम क्या लिख देंगे इसके आगे? This is a pen. Very good. The second example shows, क्या कर रहा है ये? Yes, it shows that the thing is in the distance way, एक फासले पे है ये. So that means which demonstrative pronoun will come here? That. And we have to make the sentence. हम बना सकते हैं that is a pen. हमने सेंटेंस भी बना लिया. Very good. Let's come to the more practice. ये क्या है? Oh, here we are seeing 3 pointers. Pointers हमें नजर आ रहे हैं. So which demonstrative pronoun will come here? Yes, plural है, जमा है, एक से ज़्यादा है. That means we have to, और करीब है. Look at this. जी करीब है, तो फिर हम इसके लिए सेंटेंस क्या लिख सकते हैं? These. And which linking verb will come here? जी, these are pointers. हम कह सकते हैं these are pointers. Okay class, these are pointers. Here you can see next. How many pens? More than one. एक से ज़्यादा पेन्स हैं यहाँ पे. और क्या लग रहा है हमें? Yes, they are distant. ये फासले पे हैं. So which demonstrative pronoun will come? This, these, that, those. Yes, those are pens. Those are pens. Is it clear, class? So we have, alhamdulillah, a lot of practice here. And now let's come to the book. Students, open page number 8. Here, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि using of this, that, these, those. Now we have practice, or we have to write 8 sentences. हमें 8 sentences लिखने हैं. And किस तरह लिख रहे हैं? Yes, look at the picture. आपको यहाँ पिक्चर देखनी है. You have nouns. Nouns दिए हुए हैं. Birds, elephant, bear, giraffes, pandas, zebra, monkey, hippopotamus. Is it? How many? 8 nouns. 8 animals name. So you will make sentences. और मैं आपको समझा चुकी हूँ. I have explained you that this is, that is, these are, those are. Clear? So I have made 4 sentences and remaining will be done by you. बाकी आपको 4 आपको खुद बनाने होंगे होमवर्क में. Is it clear class? So मैंने यहाँ स्टार्ट किया है नीचे से. This is a monkey. I hear a child who is showing that. आप देखिए सब ने डिमॉन्स्ट्रेट करें. डिमॉन्स्ट्रेट जैसे मैंने आपको कहा कि अपने हाथों से बता रहे हैं, इशारे से बता रहे हैं कि कौन सा कहाँ पे जानवर है. सो फर्स्ट इज
a child is demonstrating, a child is showing that a monkey. So sentence is, this is a monkey. Is it clear? So वहाँ पे और भी लोग खड़े हुए हैं, फैमिली है पूरी जो आए हुए हैं। सफारी पार्क कहते हैं क्योंकि सफारी पार्क में क्या फ़र्क होता है और पार्क में क्या फ़र्क होता है। सफारी पार्क में यू कैन सी अ लॉट ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ठीक है। लेकिन जो सादा से पार्क होते हैं उसमें आपको स्विंग्स मिलेंगे, झूले मिलेंगे। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ सफारी पार्क और अ सिंपल पार्क, ठीक है। ये अम्यूजमेंट पार्क भी कहला सकता है। ओके, अब ये अ मैन इज शोइंग pandas. So here I have written, these are pandas. Is it clear, class? A man is showing pandas. देखें आदमी उनको pandas को शो करा, तो here I have written, these are pandas. और इसी तरह से मैं भी हमने लिखा है, लेकिन हो सकता है कि एलिफेंट को खातून जो है वो शो कर रही हैं। सो here I have written, that is an elephant and those are birds. मैंने यहाँ पे मंकी, पांडाज, एलिफेंट, बर्ड्स को मेंशन कर दिया है। अब जो रिमेनिंग एनिमल्स हैं जो बच गए हैं, जिनके नाम नहीं आए हैं, सो यू विल मेक इट, यू विल यूज़ देम और इन योर सेंटेंसेस, ठीक है। आप अपने जुमलों में इन एनिमल्स को इस्तेमाल करेंगे। एंड दिस इज़ योर होमवर्क। लेट्स कम टू द होमवर्क। स्टूडेंट्स, नोट डाउन द होमवर्क। एक बात मैं आपको ज़रूर बोलूँगी स्टूडेंट्स के, आप अपने वालिदैन को डेली बेसिस पे होमवर्क दिखाया करें और उनसे साइन लिया करें, जैसा कि हमारा एक रूटीन है। ओके, नोट डाउन द होमवर्क। राइट पोम फ्रॉम पेज नंबर 6। हियर यू हैव वर्क टू डू इन द, अब काम आपका कॉपी वर्क शुरू हो गया है, ठीक है। एंड द रिमेनिंग एक्सरसाइज अभी हमने 4 सेंटेंस बनाने को छोड़ी है, वो आपने बुक पे करनी है। बट राइट डाउन द poem in your grammar notebook. I hope you all have got your grammar notebook, यानी कॉपी आप सब लोगों ने ले ली होगी। Now let's see the work in your copy. Students, जैसे हमने इंग्लिश टेक्स्ट का काम इंग्लिश टेक्स्ट की कॉपी पे किया था, now we are going to start grammar work in our grammar copy. 2 कॉपीज हर बच्चे के पास होनी चाहिए, ठीक है। This is your English grammar copy. Here, as usual, you will write down your name, GR number, class, और ये मैंने जैसे लिख दिया है, और ब्रांच नेम भी आप अपना लिख सकते हैं। First of all, I am showing you the unit number, उसका टाइटल क्या है, ठीक है, ये लिखा आपने, पेज नंबर, जो भी काम हो रहा है। So, yeah, this is the title of the unit number 1, non-action sentences. You can use your ब्लू मार्कर ऑल्सो। मैंने ये मार्कर से लिखा हुआ है, आप ब्लू मार्कर से भी लिख सकते हैं। और इसके आप कुछ टाइटल्स भी बना सकते हैं, लेकिन गंदा नहीं करना है। इज इट क्लियर क्लास? नाउ लेट्स सी, हियर आई हैव रिटन इट। इस तरह मैंने पोम लिखी है, देखिए। यू कैन ऑल्सो यूज़ अ हाईलाइटर, लेकिन हाईलाइटर अगर आपके पास है तो, अदरवाइज नहीं है, सो यू कैन यूज़ ब्लू एंड ब्लैक कलर। Students, from this you will write, you will copy down, इसी तरह से खूबसूरत अंदाज में लिखना है। बट डोंट फॉरगेट इट, आपको एक चीज़ तो लाजमी याद रखनी है, डोंट राइट विद ग्रीन और रेड इन योर कॉपी। कॉपी पे स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू राइट विद ग्रीन और रेड, ठीक है। स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं होता है कि वो ग्रीन या रेड से लिखें। चूँकि हमारी कलरफुल बुक है तो इसलिए वी हैव यूज डिफरेंट कलर्स, ठीक है। इसमें पिक्चर्स की वजह से आपको मेंशन किया है। एंड यू विल राइट इज एम आर विद ब्लैक पॉइंटर और ब्लैक फाउंटेन पेन। देखिए यहाँ पे मैंने ब्लैक यूज़ किया है कॉपी पे। स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू यूज़ ग्रीन और रेड इन कॉपी। इज इट क्लियर क्लास? आई होप यू विल डू इट एंड यू आर स्मार्ट स्टूडेंट्स ऑफ मी। और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग gradually काम कर रहे हैं, and I hope you will learn. And still one thing I must say that you will have a fortnightly test after some days, ठीक है। You will learn everything which you are understanding in the class, which you are getting in the class. आप जो भी पढ़ रहे हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो चाहे वो ग्रामर हो, आपने उसको लर्न करना है, क्योंकि इंशाल्लाह आपके टेस्ट भी अरेंज हो रहे हैं। Is it clear class? I hope you all will do
fine and good. Stay home, stay safe. अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।